Hello dear students. Today in this video we are going to start with the topic called transportation. You all must be knowing that we are actually right now in the chapter of life processes, and in this chapter so far we have studied about nutrition. That was the first life process which we studied, and the second one which we dealt with was respiration. Now the third process which we are dealing with is the topic called transportation. So first of all, you must understand, you must be knowing that transportation means carrying down the substances or things from one place to another. But what does the transportation term mean in terms of human body? It means that we have to transport, see, the cells of our body needs the gases like oxygen. They will utilize the gas like oxygen for the process of respiration, and the product which will be formed over there will be carbon dioxide. So these two gases, one of them need to be transported to the cell and the other need to be transported from the cell and thrown out of the body. So the first thing is transport of gases. Second is the transport of nutrients, because the carbohydrates final product is glucose, proteins final product is amino acids, and fats final product is fatty acid and glycerol. So all these molecules will be transported towards the cells but through a medium called blood. So transporting gases like these and transporting nutrients, as well as there will be glands which will secrete and synthesize hormones. So these hormones will also need to be transported through blood. Apart from that, there are some ions also. So all these materials are transported from one part of the body and including enzymes also. So transporting all these materials from one part of the body to other part, that is why we require a process which is called as transportation. So simply transportation means transport of these molecules from one part of the body to other. Okay. Now in case of human being, this transportation is done with the help of two systems. This transportation occurs in human beings with the help of two systems. One of them is called as blood vascular system. Another is called as lymphatic system. Okay. So one of the system is this transportation is dealt in human beings in two ways. One of them is called as blood vascular system, and the second one is lymphatic system. This blood vascular system comprises of three parts. First, a circulating fluid called as blood. Second, the blood flows through tubes, muscular tubes, which are called as blood vessels. And for the movement of blood through blood vessels, it continuously needs a pressure. So to provide that pressure, we need a pumping organ which is called as heart. So these are all topics we need to study under blood vascular system. And inside the lymphatic system, we have to understand a circulating fluid called lymph vessels, and lymph capillaries. Okay, so this comes under lymphatic system. Now first of all, we will be dealing with blood vascular system. Okay, so here I have written a definition of the transportation, which means it's a life process in which the substance which have been absorbed or synthesized in one part of the body, it need to be carried to other parts of the body via body fluids. And ये जो body fluids हम में है, ये दो है. एक उसमें आता है blood और दूसरा आता है lymph.
अब इस ब्लड के दौरान क्या क्या, इस ब्लड के ज़रिए क्या क्या चीज़ें फ्लो होगी? एक तो ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड में आएगा कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, अमाइनो एसिड्स, और कुछ केमिकल्स होंगे, हार्मोन्स एंड एंजाइम, जो ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होंगे। और जब ये चीज़ें सेल तक पहुंचेंगी तो सेल उसका ब्रेकडाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगी, यूरिया बनाएंगी, यूरिक एसिड बनाएंगी। ये सब वेस्ट मटेरियल्स है। तो इन चीज़ों को तो ब्लड ने सेल तक पहुंचाया, फिर इन चीज़ों को सेल से वापस लाना है और बॉडी से बाहर निकालना है। इसलिए ये दोनों काम एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को करने हैं, और यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो फ्लूइड है वो है ब्लड। अब जैसा कि मैंने कहा, ह्यूमन बींग्स के अंदर दो सिस्टम्स है रिस्पॉन्सिबल जो इन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वन इज़ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड अदर इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। और ये ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में तीन कंपोनेंट्स आएंगे, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी डिटेल में, किसको स्टडी करते हैं हम? ब्लड को स्टडी करते हैं। ये जो ब्लड है, इसको जब हम स्टडी करना चाहते हैं तो या फिर हम कहेंगे सबसे पहले, ये जो ब्लड है हमारे बॉडी का, इट इज़ अ फ्लूइड, but which type of tissue? It's a fluid connective tissue. हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, इसका वॉल्यूम जो होता है 5 to 6 लीटर्स के आसपास। और इस ब्लड के अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, मेन दो चीज़ें, जो हम अगर हम ब्लड की स्टडी करना चाहते हैं, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा, fluid part of blood, and inside the blood there are some cells which are formed. That's why we call them as formed elements. So our blood comprises of two things basically, plasma and formed elements. The contribution of plasma towards the blood is 55%, and the contribution of formed elements is around 45%. Okay, and you must be knowing this, you must also remember this, that blood actually contributes 8% to our body weight. यानी कि किसी भी इंसान का जो बॉडी का वज़न है, वेट है, उसमें से 8% किसकी वजह से है? ब्लड की वजह से। सो रफ फिगर में अगर हम देखें कि किसी इंसान का अगर वज़न 60 किलो है तो इसका 8% समवेयर अराउंड 4.8 kg के आसपास आता है। ठीक है ना? तो आप इस तरह से भी देख सकते हो, 8 इंटू 60 बाई 8/100 इंटू 60, ये कैंसिल, 8 6 48, 48 को 10 से डिवाइड करें तो वो कितना बनता है? 4.8 kg, राइट। तो किसी इंसान का वज़न अगर 60 kg है तो इसका मतलब उस 60 kg में से 4.8 राउंड फिगर में 5 kg ब्लड की वजह से, तो बाकी टिश्यूज़ विशूज़ वो 55 kg फिर बनते हैं। अब बात को समझे। सो इस ब्लड के बारे में ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, अब सबसे पहले हम इस प्लाज्मा को अगर डिटेल में देखना चाहिए, ये प्लाज्मा किस किस चीज़ का बना होता है? देखिए, सो ब्लड के अंदर जो ये प्लाज्मा है, बेसिकली ये प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने। ब्लड के अंदर जो ये प्लाज्मा है, इसके अंदर सबसे ग्रेटर प्रोपोर्शन में 90 to 92% अगर कोई चीज़ है वो है वाटर। 6 to 8% ब्लड में अगर कुछ होता है वो होते हैं प्रोटीन्स। और ब्लड के अंदर बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स हैं, बट 3 मेजर खास तरह के प्रोटीन ब्लड में पाए जाते हैं। वन ऑफ दैम दैट इज एल्ब्यूमिन, सेकेंड इज ग्लोबुलिन, and third one is fibrinogen. These are the 3 major type of proteins found in the blood. उसके बाद 1% जो बाकी बचता है, that is ions. Ions like सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है। सो ये आयन्स हमारे खून में यूजुअली पाए जाते हैं along with potassium ions also. ओके, नाउ सो आपने देखा कि ब्लड के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है, और इस प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? पेल येलो, यानी लाइट येलो कलर होता है प्लाज्मा का। ओके, सो प्लाज्मा इज फ्लूइडिश बिकॉज इट कंप्राइज ऑफ 90 to 92% वाटर,
6 to 8% इज प्रोटीन्स एंड 1% उसमें आते हैं आयंस। क्लियर? और प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? पेल येलो इन कलर। और प्लाज्मा का कंट्रीब्यूशन ब्लड को कितना है? 55%। गॉट इट? नाउ so this forms, so if your blood is fluidish, it is because of plasma, and if plasma is fluidish, it is because of water. Okay, so this is the information about the plasma of the blood. Now we need to understand what are those formed elements. Formed element जो हमारे खून के अंदर है वो 3 तरह के हैं, और वो 3 तरह के formed elements कौन कौन से हैं? उनमें से पहले नंबर पे आता है RBCs. सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हमारे अंदर है खून के अंदर, दे आर 3. फर्स्ट इज RBCs, रेड ब्लड सेल्स. सेकेंड इज WBCs, वाइट ब्लड सेल्स. एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स. तो जब हम RBCs की सबसे पहले बात करेंगे, RBC का जो फुल फॉर्म है वो है रेड ब्लड सेल, ये आप जानते हैं, लेकिन हम मेडिकल लैंग्वेज में RBC को बोलते हैं इराइथ्रोसाइट. ओके, इराइथ्रोसाइट्स. ये जो RBC होती है, इनका नंबर इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, विच मीन्स 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड में आपके खून में इतनी RBCs है, वेयर द लोएस्ट नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू फीमेल्स एंड द हाइस्ट नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू मेल्स. ओके, RBCs जो होती है इनकी शेप कैसी होती है? बाइकनकेव. आपने डोनट खाया होगा, तो वो जो डोनट होता है वो दोनों साइड से अंदर की तरफ आप ले लो इस छेद के बगैर, तो वैसी शेप इस RBC की होती है, बाइकनकेव शेप. ठीक है, बाइकनकेव, दोनों साइड से कनकेव होगा ये. ठीक है, इसका मतलब दोनों तरफ से ये अंदर की तरफ दसा हुआ होगा, लाइक जैसे बाइकनकेव लेंस होता है, इसी तरह दोनों साइड से अंदर की तरफ होगा ये. सो RBC का जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज होते हैं जिंदा RBCs. और RBC की जो फॉर्मेशन होती है, रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है, वो होती है बोन मैरो के अंदर. बोन मैरो क्या है? लेट अस सपोज दिस इज द बोन. इस बोन के अंदर जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी टिश्यू होता है प्रेजेंट, उसको हम कहते हैं बोन मैरो. और RBC आफ्टर फॉर्मेशन इट कैन सर्वाइव फॉर 120 days. देन the old RBCs will be broken down in an organ called as spleen. That's why spleen is called as graveyard of RBC. Graveyard of RBC किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, इस ऑर्गन को कहा जाता है. क्लियर? RBC के अंदर सबसे खास बात क्या है? इनके अंदर एक रेड कलर पिगमेंट होता है, contains red colored पिगमेंट, जिसमें आयरन भी होता है. उस रेड कलर्ड पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन. सो क्योंकि हमारे खून के अंदर सबसे ज़्यादा RBCs है, दैट्स वाई, एंड RBCs में हीमोग्लोबिन है, दैट्स वाई आवर ब्लड अपीयर्स रेड इन कलर. अगर किसी इंसान में RBC का नंबर इस नॉर्मल नंबर से बहुत कम हो जाए, ठीक है, सो डिफिशिएंसी अगर किसी को RBCs की हो जाए, यानी नॉर्मल नंबर से भी RBC बहुत कम हो जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं इराइथ्रोसाइटोपिनिया. इराइथ्रोसाइटोपिनिया, PENIA. And sometimes in the medical language it is also called as anemia. Okay, it's called as anemia.
और आरबीसीज का बनना बोन मैरो के अंदर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इराइथ्रोपोइसिस। Erythro formation of RBCs is known as erythropoiesis. Now whatever I said, you will find that information written over here. ये आपके ब्लड के बारे में नोट है और ये आपके ब्लड का चार्ट है। दो मेन कंपोनेंट्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स 55% एंड 45%। और प्लाज्मा में आपका ये तीनों प्रोटीन्स है जिनका कंट्रीब्यूशन 6 to 8% होता है, ठीक है। और मेन चीज़ तो वाटर है, वाटर का कंट्रीब्यूशन 90 to 92% होता है। और उसके साथ साथ आपको आपके खून में अमीनो एसिड्स मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें आपके खून में पाई जाती है प्लाज्मा में ही। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन आते हैं, आरबीसीज ऑल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज ऑल्सो कॉल्ड एज लीकोसाइट्स, और फिर थर्ड एज प्लेटलेट्स। ओके, सो ये रहे आरबीसीज के बारे में नोट्स कि आरबीसीज की सेल्स देखिए कनकेव होती है, ये रहे कनकीव शेप इनकी, एज मोटा, मिडल में ही काफ़ी पतला है, दोनों साइड से ऐसा ही होगा, इस साइड से भी और इसका बैक साइड भी ऐसा ही होगा। और इसमें एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी को रेड कलर मिलता है। और क्योंकि खून के अंदर सबसे ज़्यादा आरबीसीज है, इसीलिए हमारे खून का कलर रेड है। As you know that RBCs are formed in the bone marrow. RBCs are formed in the bone marrow. That's why the formation of RBC in the bone marrow is called as erythropoiesis. अगर किसी इंसान के खून में if there will be an increase in the number of RBCs, that condition is called as polycythemia. 10th क्लास में याद रखने की ज़रूरत नहीं, अपनी नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है बस। और अगर आरबीसी के नंबर में डिक्रीज हो जाए, नॉर्मल से भी काफ़ी कम हो जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इराइथ्रोसाइटोपिनिया, एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एनीमिया। क्योंकि आरबीसीज के अंदर ही हीमोग्लोबिन कम है, तो ये हीमोग्लोबिन होता है, तो अगर आरबीसीज कम, इसका मतलब उस इंसान का हीमोग्लोबिन भी कम होगा। और ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में रह के करता क्या है? दिस हीमोग्लोबिन एक्चुअली बाइंड्स टू ऑक्सीजन. It binds to oxygen. So one hemoglobin can carry 4 oxygen molecules along with it. ठीक है, so इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने the main function of RBC is to transport oxygen to various tissues and organs. So if somebody has less hemoglobin, that means less blood, less oxygen will be transported towards his cells. So वो जो person होगा, he will often complain of laziness, tiredness, ठीक है। he will also often complain that he will feel lethargic, थका हुआ महसूस करेगा, उसका स्टैमिना बहुत कम होगा। तो एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। और इंसान के अंदर जो हीमोग्लोबिन का रेंज होना चाहिए, इन केस ऑफ फीमेल्स इट शुड बी बिटवीन 12 to 16, whereas in case of males it can range between 12 to 18 grams per 100 ml of blood. 100 ml ब्लड में आपके खून के अंदर हीमोग्लोबिन इस रेंज में होना चाहिए। दिस रेफरेंस इन फीमेल्स एंड दिस रेफरेंस इन मेल्स। और आरबीसीज का एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज है। और उसके बाद ओल्ड आरबीसीज विल बी ब्रोकन डाउन इन द स्प्लीन। और ओल्ड आरबीसीज को तोड़ने के बाद वहाँ वेस्ट मटेरियल बनता है बाइल पिगमेंट्स, जो अपने बाइल जूस में बाइल पिगमेंट नाम सुने, बिलिवर्डिन और बिलिरूबिन, वो एक्चुअली आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनते हैं। इसलिए फिर वो डाले जाते हैं लिवर के अंदर, ताकि लिवर बाइल जूस के अंदर उसको मिक्स करके लिवर उसको इंटेस्टाइन में डालेगा और इंटेस्टाइन से फिर आगे जा वो एनएस से बाहर निकलेगा। इसलिए बाइल पिगमेंट्स का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, वो बेसिकली आरबीसी के ब्रेकडाउन से बना है। बिलिवर्डिन spelling is biliverdin and bilirubin, ये दोनों पिगमेंट आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनते हैं, दे आर वेस्ट। ओके, सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट आरबीसीज। नाउ white blood cells, they do not possess any pigment, they do not possess hemoglobin, that's why they are colorless. Okay, they are categorized into two types. One is granulocyte, another is agranulocyte.
What is the difference between the two? Basically, granulocytes, when we see these granulocytes under microscope, they have a nucleus and their cytoplasm appears granular. इसमें ऐसे ऐसे दाने जैसे नज़र आते हैं, साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर अपीयर होता है, इस वजह से उन WBCs को ग्रैन्युलोसाइट्स कहा जाता है। और ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन सी WBCs आती है? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसाइनोफिल्स। लेकिन जिनका साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते, जैसे ये न्यूक्लियस है और ग्रैन्यूल्स नहीं है, तो साइटोप्लाज्म विल अपीयर स्मूथ, सच WBCs आर कॉल्ड एज ए ग्रैन्युलोसाइट, यानी एब्सेंस ऑफ ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, जिसमें दो टाइप्स आते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ओके, तो ये जो दो टाइप्स है आपकी RBCs की, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। तो जिस तरह RBCs बोन मैरो में बनती थी, इसी तरह WBCs भी बोन मैरो में ही बनती है, और WBCs का फॉर्मेशन कहलाता है लीकोपोइसिस। और WBCs का जो नंबर होता है, WBC का जो काउंट है, वो है 5000 to 10,000 per millimeter cube of blood. So you can see this number is very very low as compared to RBC. That's why our blood possesses more RBCs. That's why our blood is red in color. So क्योंकि RBCs का नंबर मिलियंस में है और WBCs का नंबर थाउजेंड्स में है, सो ये डिफरेंस है। सो फॉर्मेशन ऑफ WBCs को हम लीकोपोइसिस कहते हैं। और अगर किसी इंसान में WBCs का काउंट इंक्रीज़ हो जाए, इस 10,000 से भी ऊपर हो जाए, उसका रीज़न हो सकता है उसमें इन्फेक्शन होगा, क्योंकि WBCs एक्चुअली फॉर्म्स योर इम्यून सिस्टम। इट हेल्प्स यू टू फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, इट हेल्प्स यू टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, दैट्स वाई वी डोंट बिकम इल डेली, हम रोज़ बीमार नहीं होते, ठीक है, वी डोंट फॉल इल डेली। इट्स बिकॉज ऑफ आवर इम्यून सिस्टम possesses WBCs, white blood cells, so they actually handle our defense mechanism. So अगर हमारे अंदर वो बीमारियों से लड़ने की ताकत है, potential to fight against disease है, जिसको हम कहते हैं immunity, it is because of WBCs. Okay, so if there will be increase in the number of WBCs, whatever the reason might be, so if there is an increase in the WBC count, that condition is called as leukocytosis. And decrease in WBC count is called as leukocytopenia. And when the increase in WBCs, when that will be abnormal increase, because sometimes due to infection for a particular period of time, the WBCs might increase, but later on that number will come back to normal. But if there is an abnormal increase in the number of WBCs, that can be because of blood cancer, और उसी condition को हम कहते हैं leukemia. Leukemia. You might be knowing one of the famous superstar Roman Reigns in wrestling. He was also suffering from this leukemia. Okay, तो उनके खून में काफ़ी सारे WBCs बढ़ जाती है। Abnormal increase जब WBCs का होता है, it can indicate a blood cancer, जिसको हम medical term में leukemia कहते हैं। Okay, and the last is platelets. Platelets का scientific name is thrombocytes. इसीलिए प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। ये जो प्लेटलेट्स होती है एक्चुअली ये कोई सेल्स नहीं है, ये सेल्स के फ्रैगमेंट्स है, लेकिन इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाई? बिकॉज दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, या जिसको हम कोगुलेशन कहते हैं। कोगुलेशन मीन्स बहुत सारी चीज़ों का आपस में जुड़ जाना। जैसे आपको पता है कि जैसे दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, उसको भी हम कोगुलेशन कहते हैं। इसी तरह whenever there is an injury at some part of our body, these platelets secrete a factor called thrombin. वो थ्रोम्बिन क्या करता है? हमारे खून में ऑलरेडी एक फैक्टर है ना, फिब्रिनोजेन, इट्स अ सॉल्युबल प्रोटीन। तो थ्रोम्बिन क्या करता है? इस फिब्रिनोजेन को थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिन में। ये फिब्रिन एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये बहुत सारे फाइबर्स आपस में जुड़ जाते हैं एंड दे फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। जैसे खिड़की पे वो जाली जैसे हम देखते हैं ना, इसी तरह दे फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। एंड इस मैश लाइक स्ट्रक्चर के पोर्स के थ्रू से ब्लड लीक आउट करने की फर्दर कोशिश करता है, तो उसके WBCs RBCs इन पोर्स में फंस जाते हैं। इस तरह से ब्लड को बाहर लीक आउट होने के लिए जो स्पेस थी वो ब्लॉक हो जाती है। इसी को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो platelets at the site of injury, they secrete a factor called thrombin, and this thrombin converts fibrinogen into fibrin,
एंड फिब्रिन फॉर्म्स अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, एक जाली जैसी बनाती है और उस जाली के थ्रू से ब्लड फर्दर लीक आउट करने की कोशिश करता है, तो उस जाली के पोर्स में ये WBCs RBCs फंस जाती है और इस तरह से ब्लड फ्लो जो हो रहा था वो रुक जाता है। ओके, सो प्लेटलेट का जो काउंट होता है हमारे खून के अंदर, इट इज़ बिटवीन 1.5 to 3 लाख। ओके, और अगर प्लेटलेट के काउंट में डिक्रीज हो जाए, यानी इससे नीचे चला जाए प्लेटलेट्स, उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और ये देखा गया है कि अगर किसी के बॉडी में प्लेटलेट का काउंट इंक्रीज भी हो जाता है किसी वजह से, तो इट हैज़ नॉट बीन येट सो फार सीन दैट कि प्लेटलेट्स के इंक्रीज होने से कोई डिसऑर्डर हो। ठीक है, तो इसीलिए प्लेटलेट्स के इंक्रीज होने से कोई एबनॉर्मेलिटी अभी तक सामने नहीं आई है। अलबत्ता इनका डिक्रीज़ हो जाना इट्स अ वरिंग फैक्टर, बिकॉज जितना प्लेटलेट्स डिक्रीज़ हो जाएंगी इसका मतलब उसमें खून के अंदर क्लॉटिंग होने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस इज़ द स्लाइड विच यू कैन नाउ स्टडी ऑन योर ओन कि ब्लड आपके बॉडी में करता क्या क्या है। आई समझ बात? सो यू कैन स्टडी दिस, एंड दिस इज़ समथिंग सपोज विच we collected some sample of blood, put it inside the test tube, and then that test tube is put inside the machine called as centrifugation machine, या centrifugation इस प्रोसेस को कहते हैं। एक मशीन होती है हमारे पास, उसमें टेस्ट ट्यूब्स रखने की जगह है। तो जब हम उसमें टेस्ट ट्यूब्स रखते हैं, then this machine rotates at very high speed. So what happens, our blood sample which we have put inside this test tube, it differentiates to form two types of this layers. Upper layer is plasma, 55% of the total blood, and the lower layer which will be containing majority of the erythrocytes, तो उसका contribution 45% है। और लीकोप्लास्ट यानी कि WBCs और प्लेटलेट्स का कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है। इसका मतलब अगर आपका खून प्लाज्मा का बना है जिसका कंट्रीब्यूशन 55% है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स का बना है जिसका कंट्रीब्यूशन 45% है, इसका मतलब इस 45% में मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन इरिथ्रोसाइट्स का है, यानी रेड ब्लड सेल्स का है, और लीकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का कंट्रीब्यूशन इट इज़ लेस देन 1%। इसीलिए आप इस टेस्ट ट्यूब में 3 तरह की लेयर्स की फॉर्मेशन देख रहे हो। अपर वाला पेल येलो कलर इज प्लाज्मा, लोअर डोमिनेंट रेड कलर इज एरिथ्रोसाइट्स, और ये जो हल्का सा क्रीमी लेयर आपको दिख रही है वाइट कलर की, दिस इज लीकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, गॉट इट? सो फाइनली you can watch this video at your comfort and please revise it. So this was the lecture about blood. Now finally, blood comprises of 2 parts, plasma and formed elements. The contribution of plasma is around 55% and formed elements is 45%. Then you have to check the composition of plasma. Then major is of water, प्रोटीन्स एंड देन आयंस, गैसेस, हॉर्मोन्स वगैरह वगैरह। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 तरह के हैं, RBCs और प्लेटलेट्स। ओके, सो प्लीज़ चेक दीज नोट्स एंड सी how much information is valuable for you for class 11th, as well as you can use this video for class 10th also. Okay, see you in the next video.